आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद को दी शिकस्त। तहरीक की हिमायत में 122 और मुखालिफत में 160 वोट। औकाफी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़, बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवज़ा और महंगाई पर कंट्रोल करने का मजलिस ने किया मुतालबा। तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत। सोहराबुद्दीन और मुजाहिद सलीम के एनकाउंटर में मुलविस गुजरात और आंध्र प्रदेश के पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में तल्ख बहस व तकरार, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ शख्सी रिमार्क्स। मेयर बी कार्तिका रेड्डी ने दिया इस्तीफा, मजलिस का मेयर बनने की राह हुई हमवार। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफुजात की फराहमी का मुतालबा। अर्दापुर में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और अतापुर राजेंद्र नगर में एक शख्स का नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हुकूमत ने अपोजिशन तेलुगु देशम की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को शिकस्त दे दी है। इस तरह से किरण कुमार रेड्डी की हुकूमत पर मंडलाता खतरा टल चुका है। पीर की सुबह 9 बजे से रात 1 बजे तक हुए गर्मा गर्म मुबाहस के बाद हुई वोटिंग में तहरीक की तायद में 122 वोट डाले गए, जबकि उसकी मुखालिफत में 160 वोट डाले गए। तवक्के के मुताबिक जगन ग्रुप के हामी 16 अरकान असम्बली ने तहरीक की तायद में वोट दिए। कबलजी तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहस के दौरान तेलुगु देशम, TRS और कांग्रेस के अरकान के दरमियान बहस व तकरार भी देखी गई। YSR की बेवा विजयलक्ष्मी ने भी पहली बार असम्बली में तकरीर की और अपने शौहर की खिदमात का जिक्र करते हुए जज्बाती हो गई। मजलिस ने तहरीक की मुखालिफत में वोट दिया। May I now ask the neutrals to rise, please? Any neutrals? Please rise. Yes, the motion of no confidence in the Council of Ministers headed by Sri Kiran Kumar Reddy Garu is lost. The ayes are 122, the noes are 160, the neutrals are 1. With the consent of the House, I adjourn the House sine die. The statistics of the 8th session are placed in the House. तेलुगु देशम की तहरीक अदम एतमाद के मुबाहस के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू के दरमियान बहुत देर तक तल्ख बहस व तकरार देखी गई। दोनों कायदीन के दरमियान बहस की वजह से ऐवान का माहौल इंतहाई गर्म देखा गया। నా కుటుంబం 12 ఎలక్షన్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలో కంటిన్యూస్ గా 1962 నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సేవ చేస్తూ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల సహాయంతో సోనియా గాంధీ గారి సహాయంతో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ సహాయంతో నేను ముఖ్యమంత్రి అయినాను సార్. పిల్లనిచ్చి మామని మోసం అయితే నేను ముఖ్యమంత్రి కాలేదు సార్. జీవిత చరిత్రలో ఎవరే గాని వారి కుటుంబ సభ్యులకు మోసం చేసి అధికారం కోసం వెన్నుపోటు పోసి నేనైతే ముఖ్యమంత్రి కాలేదు సార్. అటువంటిది నాకు వచ్చిందంటే కాలుతో ఫుట్బాల్ తన్నిటి దండేవాడిని సార్. తెలుగుదేశం పార్టీని కాపాడుకోవడానికి ఆ రోజు మేము ఎమ్మెల్యేలు అందరం కలిసి నన్ను లీడర్గా ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఆ విధంగా నేను ముఖ్యమంత్రి అయ్యాను. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో
ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిసి నన్ను ఎంపిక చేశారు తప్ప ఇంకోటి కాదు అధ్యక్ష. రెండో అధ్యక్ష, మళ్ళీ 99లో ప్రజలు ఎన్నుకున్నారు. 9 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవ్వరికీ లేని అవకాశం నాకు ప్రజలు ఇచ్చారు. ఆ విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రెండోసారి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకుడిగా ఉండే అవకాశం ఇచ్చారు అధ్యక్ష. మీ మారిగా సోనియా గాంధీ దగ్గర పోయి ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకొని సీల్డ్ కవర్లో వచ్చి ముఖ్యమంత్రి కాలేదు అధ్యక్ష. మా హైకమాండ్ ప్రజలు, మీ హైకమాండ్ ఢిల్లీ, మీ సోనియా గాంధీ గారు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. I am a leader on my own. You are a leader on Sonia Gandhi's mercy. You are a leader because Congress party నీకు శిక్ష పెట్టి ఆ రోజు టికెట్ ఇచ్చింది కాబట్టి నువ్వు లీడర్ అయినావు. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక యువకుడు పైకి వస్తాడు అనే ఉద్దేశంతో నీకు టికెట్ ఇచ్చింది. అందుకనే నిన్ను చూసి మంచోడు అనుకుని బాబు రామారావు పిల్లలు ఇచ్చాడు. ఇట్లా మోసం చేసేవాడు ఉండింటే ఏ పరిస్థితి ఉండేదో తెలిసేది. కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పైన నీకు ఎటువంటి హక్కు లేదు. అదే మనకున్న చరిత్ర అదే. ఎవరైతే సహాయం చేస్తారో వాళ్ళందరినీ మోసం చేయాలి. కాంగ్రెస్ పార్టీని మోసం చేశాం, మీ మామని మోసం చేశాం, ప్రజలను కూడా మోసం చేస్తున్నారు ఈ విధంగా. Nothing personal. Let's leave it. मजलिस ने तेलुगुदेशम की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत की है। मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुबाहस में हिस्सा लेते हुए महंगाई, औकाफी अराजियात, बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा देने और राज्य युवक करनालू प्रोग्राम के दौरान मुसलमानों को वाज़ेह नुमाइंदगी देने का भी मुतालबा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलुगुदेशम की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत की। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तहरीक अदम एतमाद के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि यूं तो सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, लेकिन मजलिस अक़लियतों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात की तायीद करेगी। Sir, our party is committed to the welfare of minorities, other weaker sections of the society. We would strive to take up the cause of the welfare and development with whichever regime is in power, sir. The interest and well-being of the minorities are much dearer to us than any political alliances, sir. Nobody can take us for granted. We are always at our liberty to change our strategies to suit the larger interest of the minorities, sir. As they say, there are no permanent friends and foes in politics. At the same time, we are not like fair weather. If you take care of minorities, we will be your friend, and if you fail to protect the interest of minorities, we will not hesitate to seek alternatives, sir. Before I conclude, sir, I would like to reiterate that our party strongly opposes the no-trust motion against the Kiran Kumar Reddy government. The people have elected all of us MLAs for 5 years tenure, and let the people be the judge and arbiters when they get the opportunity to exercise the franchise and elect the government of their choice, sir. अकबर ओवैसी ने अपनी तवील और फिक्रअंगेज तकरीर में अक़लियतों के मसाइल के अलावा महंगाई और तेलंगाना मसले का भी अहाता किया। उन्होंने तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत से फौरी फैसला लेने का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने 2009 में KCR की भूख हड़ताल से तेलंगाना तहरीक में आई शिद्दत, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम की जानिब से तलब किए गए कुल जमाती इजलास, श्री कृष्णा कमेटी का क़याम और तेलंगाना के नाम पर हुए पुरतशद्दुद वाक़यात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक से रियासत को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मजलिस रियासत की तकसीम की मुखालिफत करती है, लेकिन अगर अलहदा तेलंगाना की तश्कील नागज़ीर होती है तो हैदराबाद को ही उसका सदर मुकाम बनाया जाना चाहिए। अकबर ओवैसी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान तलबा के तालीमी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। Sir, Mr. Chidambaram, my communist friends were there in the meeting with me in January. We were there. Mr. Chidambaram has promised, and they said within 8 days we'll call a meeting of all political parties. Sir, I'm really surprised. Why is the union government sitting on this issue undecided? Our ruling party who is ruling this country is not able to take a decision. This way or that way, yes or no, whatever. For heaven's sake, for God's sake, please take a decision. It is high time. We cannot see the state suffering more, sir. Sir, in that we also, sir, I have been reading in newspapers
sir, a few months back. In that it was said that the four parties have not yet decided upon the stand. Congress, Telugu Desam, YSR Congress and MIM. Sir, as far as MIM is concerned, sir, we have clearly and categorically stated that our party's position before the Union Home Minister, before the Sri Krishna Committee, and also I think I have spoken about the stand of my party very clearly in this house. The most important principal stand of our party has been same right from 1960s till today is that we are for United Andhra Pradesh. It is very clear. And secondly, what we have made it very clear to the Sri Krishna Committee also, okay, we are for Andhra Pradesh. And if the Union Government or the Government of India is thinking of having a state, carving a state from Andhra Pradesh, we had made a request. Second proposal which was given by MIM was that to have a Royal Telangana, Royal Seema and Telangana together and Hyderabad as a capital. And thirdly, when we said that, if for sure Telangana is going to be formed, Hyderabad should be the capital of Telangana. If anybody is thinking that Hyderabad would be made a union territory or a joint capital, it is nonsense. We are not going to agree for it. We are not going to allow for it. Telangana comes, then Hyderabad should and will be the capital of Telangana. This was being made very clear, sir. Sir, here I would like to point out that the people across the region are not any longer to tolerate further issues. The series of bunds and other agitation, including early in this year, government employees, teachers and workers for 6 weeks later this year have resulted in hardship. Common man, but also tested their patience. So schools and villages remain closed for weeks together in Hyderabad and other Telangana district, virtually disrupting the studies of lakhs of Telangana students and throwing the academics at school and colleges level. Students are hardest hit by this agitation, as they are now forced to make up for the lost time, even as the government has decided to examination on time and universities have decided to stick to original academic schedule for exam. This despite of 6 weeks of closure. It's a matter of concern for all of us to witness the desperate student for the cause of Telangana. Over 600 students and youth have committed. Now the students are facing criminal cases for their participation in educational program. We understand the plight of the parents who have lost their sons and those who are facing the criminal cases, sir. कायदे मजलिस ने महंगाई पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि केरोसिन तेल के कोटे में भी कमी कर दी गई, जबकि मौजूदा कोटे से चिराग जलाना भी मुश्किल हो गया है। अकबर ओवैसी ने अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे पर फिक्रमंदी जाहिर करते हुए कहा कि दाल, चावल, शक्कर, तेल, तरकारी और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे से आम आदमी काफी मुतासिर हुआ है। हुकूमत की ₹1 किलो चावल स्कीम से मुतालिक अकबर ओवैसी ने चावल के नमूने को असेंबली में पेश किया और हुकूमत से बेहतर मेयार का चावल सरबराह करने का मुतालबा किया। The poor and the lower middle class, including daily wages earners and salary class, are badly hit. Like the old problem the government is in bid to raise revenue should not kill the goats. The common man and more so the daily wages earner, the middle class and the salary class are running on the impact of spending price rise. I am quoting on the statistics on the note on rising price essential commodities table the Civil Supplies Minister with Sridhar Babu in the House. The price of super fine rice range between ₹24 to 27 a kg. Fine common rice is available at 8. On the other hand, pulse and red gram, black gram, green gram are selling at ₹51 to ₹65 a kg, sir. So tamarind price ranges between ₹46 to 99 kg. Chilies sell at 97 a kg. Groundnut oil price is ₹93 a kg. Sugar is available in market at ₹32 a kg. Even the price of vegetable right to bazaar and open market are touching the sky. Carrot sells at ₹32 a kg and bitter gourd at ₹20 a kg. So a white card holder gets a maximum 20 kg of rice, 1 kg from a fair price shop, but buying other essential commodities from the market burns a hole in their pocket.
सर 1 रुपया किलो चावल दे रहे हैं। मैं हुकूमत से कहूंगा साहब कि प्लीज वो जाकर चेक करें कि क्वालिटी कैसी है 1 रुपये किलो चावल की। सर आप 1 रुपये के बजाय 2 रुपये ले लीजिए, 2 के बजाय 3 रुपये ले लीजिए, 3 के बजाय 5 ले लीजिए, लेकिन खुदा के लिए अच्छी क्वालिटी दीजिए। When this 1 rupee kg rice is cooked, sir, it becomes just not a rice, sir. खा नहीं सकते उसको। So, sir, and I have the sample, sir. See this color of the rice, sir. This 1 rupee kg rice. It is so bad. I hope that the state government would make a note of this and see that a more better quality of 1 rupee a kg. Yes, Minister for Civil Supplies. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమంలో 2 రూపీస్ కేజీకి ఇచ్చే రైస్ 1 రూపీస్కి ఇస్తామన్నారు అధ్యక్ష. ఎఫ్సిఏ వాళ్ళు డెలివరీ చేస్తారు అధ్యక్ష ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్స్కి. వీ హ్యావెంట్ చేంజ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రైస్ విచ్ ఈస్ బీన్ డెలివర్డ్ రైట్ నౌ. It is the same 2 rupees rice which is given at a lesser rate of ₹1. And FCA will make it sure the quality of rice is to be maintained. It has to be edible at any cost. There are certain lacunae which is being done in ration shop dealers issue. We will take care of it. We are on the job. Wherever there are lapses, we will take care of it. Ultimate agenda of this government is to provide 1 rupee kg rice to each and every card holder. Sir, and a white ration card, Honorable Minister Saab had mentioned, sir. So the total kerosene, I'm not aware how much of kerosene is being given in a state of Andhra Pradesh, in the districts. As far as the Hyderabad city is concerned, sir, previously they used to give 10 liters, then they had reduced it to 8, then again reduced it to 6, now they're giving 4 liters. Sir, 4 liters divided into 30 days, that is 135 ml, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, so this is 135 ml, sir. Sir, now the question is, can anyone cook food on 135 ml in a day? Sir, ये चिराग जलाने के लिए दे रहे हैं आप तेल या चूल्हा जलाने के लिए? चिराग भी जलाने को दे रहे तो रात भर चिराग भी नहीं जल सकती साहब 135. दिस एग्जैक्टली 135 ml. तो अगर कोई आंख पे डाल के जलाना चाहे तो भी नहीं जला ले सकता सर, कि इतना कम है. तो I request the government, and the answer I know the Honorable Minister would give that is that this is what is the allocation which is being allocated to the state of Andhra Pradesh from central government. It is your government there. How come we used to get 10 liters then and why are we getting 4 liters now? Please request the government of India, tell them to give 10 liters. It is not enough for the people. 135 ml is really not enough, sir. अकबर ओवैसी ने गैर कानूनी कानकन स्कैम की जारी तहकीकात का खैर मकदम करते हुए शराब माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया. Now, the IS officer lobby is said to be exerting pressure on the government to fix responsibility on ministers if decisions are taken despite adverse advice of the bureaucrats. All this shows that all is not well with the present cabinet, state administration and other wings of the government. Now the scams and loot of the mining mafia that rule the host in the state in recent years have come to the core, even at the scam relating to land allotment by successive TDP and the Congress government are also under scanner of the CBI and other central state agencies, and also a House Committee of the state legislature, which had been promised by the Honorable Speaker. I would like to remind our friend, Mr. Kiran Kumar Reddy Saab, that land allotment is a very tricky business. It's a very tricky business. It has landed 2 or even 3 of his predecessors in trouble. We strongly protest against the recent decision of the government relating to allotment of land for some industrial project. The cement project has been allotted 1,200 acres of land, even as the draft allotment policy of the government was awaiting the nod of all party meeting convened by the chief minister. Sir, at the same time, sir, after the mining mafia
I think now the liquor mafia seems to be taking firm foot in the state. These were some powerful persons forming and controlling a syndicate of liquor outlets in various districts. Sir, if liquor mafia is not controlled in time, this may pose a big threat to Chief Minister and the state government in the near future, sir. जैसा उर्दू में कहते हैं कि अक्लमंद को इशारा काफी है, तो I think Honorable Chief Minister understand what I'm saying. Like the legendary liquor and the drug mafia, New York and Chicago, the liquor mafia is flexing its muscles in the state. They are making quick money of resorting to state of liquor on much higher prices than the printed MRP mandated by the government. In one district alone, sir, in one district alone, they are said to be raking in 600 crores a year through this modus operandi, sir. उन्होंने मुस्लिम नौजवानों पर आयद किए गए मुकदमात से दस्तबरदारी के तहकुनात पर अदम अमलावरी पर अफसोस का इजहार किया। अकबर ओवैसी ने उम्र कैद की सजा काट रहे साबिक कांस्टेबल खदीर की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि असेंबली में खदीर के पेरोल पर रिहाई के लिए कई बार नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को खदीर की रिहाई पर संजीदा तवज्जो देनी चाहिए। We would like to cite the instance of convicting of prisoners who stand to face the discriminatory treatment and continue to languish in jail. M.A. खदीर सर, ये खदीर के बारे में आप भी सुने होंगे साहब, कितने वक्त हम बोले हैं साहब, बार बार ये हाउस में बोलते गए, पेरोल पे दिलाते गए साहब, कितने दिन तक साहब, 20 बरस हो गए खदीर को साहब। अरे अब तो छोड़ दो उसको, या अगर नहीं छोड़ते तो लेके जाके गोली मार दो उसको, कब तक उसको रखेंगे साहब। कायद मजलिस ने कांस्टेबल्स के इम्तिहानात के दौरान तेलुगु के दूसरे पर्चे के लुजूम को बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बम धमाकों के सिलसिले में गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को फौरी मुआवजा अदा करने पर जोर दिया। अकबर ओवैसी ने दरगाह बाबा शरफुद्दीन की 35 एकड़ अराजी को वक्फ बोर्ड के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नए हज हाउस की तामीर का मसला अभी भी तातुल का शिकार है, जबकि फौरी इस सिलसिले में हुकूमत को इक़दामात करने की जरूरत है। मजलिसी कायद ने हुकूमत के राजीव युवा किरनालू प्रोग्राम में मुसलमानों को वाज़ेह नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी ने कहा कि सरकारी अराजियात पर नाजायज कब्जे किए जा चुके हैं। उन्होंने चंद्रानगुट्टे में अराजी का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत को नाजायज काबजीन से आज़ाद कराते हुए गरीबों के लिए मकानात तामीर करने चाहिए। कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने रियासत में कौमी मुशावरती कौंसिल की जानिब से तजवीज़ करदा फ़िरक़ावाराना बिल को मुतारिफ करने पर भी जोर दिया। अकबर ओवैसी ने वायसदार के दौर में पुराने शहर की तरक्की के लिए 2000 करोड़ रुपए के पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक सिर्फ 1000 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं, जबकि मजीद 1000 करोड़ रुपए जारी किए जाने चाहिए। उन्होंने हुकूमत की स्कीमों में मुसलमानों को वाज़ेह नुमाइंदगी देने और अक़लियती महकमेजात में मक़लूआ ओहदों पर फौरी तक़र्रुरात का मुतालबा किया। कायद मजलिस मुकर्रना पार्टी ने रियासत में उर्दू मीडियम के 100 मजीद स्कूलों के क़याम पर भी जोर दिया। अकबर ओवैसी ने तकरीर के ख़िताम पर उन पर किए गए हमले की असम्बली में की गई मजम्मत और अवाम की जानिब से की गई दुआओं का फिर एक बार शुक्रिया अदा किया, जिस पर स्पीकर ने कहा कि असम्बली ने आप पर हमले की मजम्मत की है और आपकी ऐवान में वापसी बात से मसरत है। This house had unanimously resolved and thanked all of those, and we definitely condemn the attack on you. This was 2 days ago, and we're very happy to have you back. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश पुलिस और बदनाम जमाना गुजरात पुलिस के माबिन रवाबित पर हुकूमत से जवाब तलब किया है। असेंबली में अपनी तकरीर में अकबर ओवैसी ने कहा कि शहर के नौजवान मुजाहिद सलीम को गुजरात के एक पुलिस ओहदेदार नरेंद्र अमीन ने रास्त फायरिंग करते हुए कत्ल किया, जो अब गुजरात जेल में महरूस है, लेकिन हमारी पुलिस उसे हैदराबाद लाने में नाकाम है। उन्होंने सोहराबुद्दीन और उसकी अहलिया के सिफाकाना कत्ल के मामले में आंध्र प्रदेश पुलिस के रोल और गुजरात पुलिस के साथ तालमेल पर हुकूमत को जवाब देने का मुतालबा किया। Sir, one youth Mujahid Salim Islahi was killed in an alleged encounter by Gujarat police team in front of DGP's office in Hyderabad, Lakdi Kapul, October 2005, sir. When arrested, Maulana Nasiruddin Harin Pandya case, despite a case being registered in Hyderabad, the AP police made no attempt arrest to the main accused and the Gujarat police official N.K. Amin, who is also involved in the other fake encounter killings in Ishrat Jahan, Sohrabuddin and Kausarbi, sir. Why is the Congress government in AP shielding these guilty police officials of the state and Gujarat despite representation made from a party and organization? No action taken against in these officials, sir. I request the government to make a note, sir. टीआरएस रुकन असेंबली केटीआर ने तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू से सवाल किया है कि अगर पोलावरम प्रोजेक्ट के टेंडर से मुतालिक इनके इल्जामात गलत साबित हुए
तो वो तेलुगुदेशम पार्टी को तहलील कर देंगे। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि टीआरएस पार्टी पोलावरम टेंडर से मुताल्लिक किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तहरीक अदम एतमाद की तायद न करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अलहदा तेलंगाना के मसले पर जो मुखालिफ रवैया इख्तियार किया है वो इससे इन पर यकीन नहीं करते और उन्हें तेलंगाना का एक धोखेबाज तस्वुर करते हैं, इसीलिए वो इनकी जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद की तायद नहीं करेंगे। बी कार्तिका रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कार्तिका रेड्डी के इस्तीफे के बाद मजलिस का मेयर बनने के लिए राह हमवार हो गई है। कार्तिका रेड्डी ने आज अपना इस्तीफा कमिश्नर बल्दिया के हवाले किया। मजलिस और कांग्रेस के दरमियान मायदे के मुताबिक मेयर के ओहदे के लिए पहले 2 साल कांग्रेस और बाद 2 साल मजलिस के लिए मख्तस किए गए थे। कांग्रेस के मेयर कार्तिका रेड्डी ने अपनी 2 साल की मियाद मुकम्मल कर दी थी, लेकिन इनकी जानिब से ओहदे में तोसी की ख्वाहिश को कांग्रेस क़यादत ने मजलिस के साथ हुए मुआहदे के तहत नजरअंदाज कर दिया था। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने हफ्ते को इजलास तलब करते हुए कार्तिका रेड्डी को मुस्तफी हो जाने की हिदायत दी थी। बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय की क़यादत में इंदिरा पार्क से चलो असेंबली प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि यूपीए हुकूमत अपने 9 साला इख्तिदार में महंगाई पर काबू पाने में नाकाम हो गई है, बल्कि वो अमरीका व दीगर ममालिक के साथ तिजारती ताउन करके मुल्क की कीमतों में मजीद इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए चावल के अलावा दूसरी अशिया जरूरिया भी अहमियत रखते हैं, लेकिन रियासती हुकूमत सिर्फ 1 रुपया किलो चावल की फराहमी को कारनामा समझ रही है। एहतजाज में बीजेपी के लीडर्स डॉक्टर लक्ष्मण बदामाल रेड्डी के अलावा दूसरों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने बीजेपी लीडर्स और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मराठवाड़ा के अर्धापुर में मजलिस बल्दी उम्मीदवारों के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद के जरिए ही मुसलमान सियासी ताकत हासिल कर सकते हैं। सदर मजलिस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को भी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं, क्योंकि महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 13% है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इंसदाद फिरक़ेवाराना बिल लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्क में जहां कहीं दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं, इसके लिए मुसलमानों को जिम्मेदार करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नांदेड़, लातूर, परभनी, जालना और मालेगांव में बम धमाके किए गए और इनमें मुसलमानों को फांसने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डालते हुए उन पर मजालिम ढाए गए। उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन जमातों ने मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। दोबारा भी कर सकते हैं, क्या फिर दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे? हम यकीनन पकड़े जा सकते हैं, क्योंकि इनका जहन कैसा काम करता कि हर बुरी चीज है तो मुसलमान करा। हमको अच्छा काम कर ही नहीं सकते इनकी नजर में। हम अच्छा काम क्या कर सकते राष्ट्रवादी कांग्रेस और पुलिस की नजर में कि रमजान आया तो इफ्तार की दावत कर सकते। रमजान की ईद आई, बकरीद आई तो फौरन ईदगाह के सामने कायद खड़े हुए हैं, साहब खड़े हुए हैं, साहब को मोहब्बत है। अरे हम कब तक तुम ये नाटकबाजी करोगे? ये ड्रामेबाजी अब चलने वाली नहीं है, इसको बंद करो। काम करना है, ठोस इक़दामात करना है। कब तक आप गरीब और मासूम मुसलमानों को भटकाते रहेंगे इन बातों से? अर्धापुर की मिसाल ले लीजिए, औसाद की मिसाल, उदगीर की मिसाल। कौन सा डेवलपमेंट यहाँ पर आप कराए? कौन सा काम यहाँ पर आपने करवा कर बताया? कब तक आप ये राष्ट्रवादी और कांग्रेस की बातों में आएंगे? सही कहा सैयद मोइन ने कि इंटरनेट के ऊपर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। काबतुल्लाह शरीफ की तस्वीर के ऊपर किसी शैतान ने बेहुरमती के कलमात और फोटो लगा दी। तो गीरत ईमानी का मुजाहरा किया इन लोगों ने, एहतजाज किया। अजीजान मिल्लत, इनको क्या हुआ? अरे भाई तुम किसी पार्टी में रहो, मगर काबा तो हमारा भी है ना, तुम्हारा भी तो है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती तुम और हम भी तो हैं, मगर नहीं। वहां पर एक राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदर को किसी ने थप्पड़ मारा, किसी पागल ने, तो फौरन एहतजाज करने को निकल कर आए। मैं भी मजम्मत किया, पार्लियामेंट में उसकी शदीद मजम्मत किया कि गलत काम हुआ, नहीं होना था।
मगर वहां पर कैसा, वो यहां पर जब इंटरनेट पर हुआ तो तुम एहतजाज नहीं करते? अरे तुम क्या करने जा रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तुम जिसकी गुलामी कर रहे हो, क्या तुमको आखिरत में काम में आने वाली है? जो तुम आज निकलकर उनकी चमचागिरी कर रहे हो, क्या तुमको हशर के मैदान में वो काम में आने वाला है? क्या तुमको दुनिया में इज्जत मिलेगी, जिल्लत मिलेगी? क्या हशर के मैदान में तुम्हारे सीधे हाथ में तुम्हारा नाम अमाल होगा या फिर तुम्हारे बाएं हाथ में होगा? मगर नहीं, गुलामी करना है, सांप को थप्पड़ मारे तो एहतजाज करना है। अरे क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? निकलो इन गुलामियों की जंजीरों से, तोड़ दो इनको, ये गुलामी मत करो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ नगर पुलिस मदन को 3 लाख रुपए रिश्वत लेकर पुलिस क्लियरेंस देने पर मुअत्तल कर दिया गया। बताया जाता है कि आसिफ नगर का रहने वाला एक नामालूम शख्स जापान में किसी जुर्म के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इस नामालूम शख्स ने हैदराबाद आकर नए पासपोर्ट की कोशिश शुरू कर दी, जबकि इसके खिलाफ आसिफ नगर और लंगर हाउस पुलिस में 3 केसेस दर्ज हैं। इसने एसबी कांस्टेबल मदन को पुलिस क्लियरेंस देने के लिए 3 लाख रुपए रिश्वत दिए और पासपोर्ट हासिल करके जापान चला गया, जहां उसे इमिग्रेशन ओहदेदारों ने फिर गिरफ्तार कर लिया और वहां से उसे पूछताछ जारी है। जबकि एसबी कांस्टेबल के ओहदे से तरक्की पाने वाले एएसआई आसिफ नगर पुलिस मदन को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। अतापुर रोड पर नामालूम अफराद ने 9 नंबर किशनबाग के रहने वाले एक शख्स पर मोहलिक हथियारों से हमला करके सिफाकाना कत्ल कर दिया। 50 था 55 साल मोहम्मद सलीम पर शाम में 5 था 5:30 बजे के करीब हमला किया गया। उन्हें शदीद जख्मी हालत में उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनके मुआयने के बाद उन्हें मुर्दा करार दिया। इतला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दवाखाने उस्मानिया पहुंचकर हालात से वाकफियत हासिल की और पुलिस से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द खातियों को फौरी गिरफ्तार करे। मोहम्मद सलीम की हलाकत की खबर फैलते ही पुलिस को चौकस कर दिया गया है। पुलिस का काम है कि अपनी नाकामी को छुपाने के वास्ते सिर्फ हिले हवाले से बात नहीं चलेगा, इसके ऊपर फौरी इक़दाम करना और उनको पकड़ के सबसे सख्त सजा देना। 24 घंटे के अंदर ये वाक़े के पर पुलिस इक़दाम करना उनकी जिम्मेदारी है और फौरी इस सिलसिले में चौकसी इख्तियार करते हुए रात में उनको राउंड अप करना और कल मीडिया को बता के, प्रेस को बता के डिक्लेयर करना उनकी गिरफ्तारी को। साबिर नगर में टाटा डोकोमो टावर नस्ब करने के खिलाफ मुकामी अफराद ने एहतजाज किया। बताया जाता है कि मकान के मालिक फहीम ने यह टावर मुकामी अफराद की मुखालिफत की वजह से टोली चौकी के मकान से मुंतकिल करके अपने दूसरे मकान वाक़े साबिर नगर में नस्ब करवाया, लेकिन मुकामी अफराद के एहतजाज के बावजूद यह टावर नस्ब कर दिया गया। बताया जाता है कि इंसानी जिंदगी पर टावर्स के मुज़र असरात मुरतब होने का शुबा किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। ट्रेनों में मुसाफिरीन को चाय, बिस्किट और मशरूबात में नशाआवर दवा मिलाकर लूटने वाली बैन रियासती टोली के 4 सारिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस के सुपरिंटेंडेंट ने मीडिया को बताया कि दिल्ली के रहने वाले मनोज कुमार, हनीफ, संजय और सतीश एक्सप्रेस ट्रेनों में पहले मुसाफिरीन से दोस्ती किया करते थे और उन्हें चाय, बिस्किट, कॉफी और मशरूबात में नशाआवर एटिवान मिलाकर पिलाया करते थे। मुसाफिरीन के बेहोश हो जाने के बाद सारिकों की टोली उनके जरूरी सामान का सरखा किया करती थी। पुलिस ने बताया कि सारिकों की टोली इससे कबल भी कई वारदातें अंजाम दे चुकी है और रियासत में उनके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस ने हैदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मुश्तबा हालत में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर इन सारिकों ने कबूल किया कि जनरल कंपार्टमेंट में सफर करते हुए मुसाफिरीन को नशीली दवा पिलाकर उन्हें लूटा करते थे। पुलिस टोली के इन सारिकों से मजीद पूछताछ कर रही है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड खुसरो पाशा बियाबानी ने बी का अलावा पहुंचकर धट्टी चढ़ाई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की जानिब से यौम आशुरा के जुलूस के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे के पीआरओ ने बताया कि कर्नाटका में सैयद ख्वाजा साहब के सालाना उर्स शरीफ के पेश नजर साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से खुसूसी ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन 9 दिसंबर को सुबह 11 बजे रवाना होगी और शाम 4 बजे वाड़ी जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन सुबह 4 बजे वाड़ी से निकलेगी और शाम 4 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी।
सिकंदराबाद सिविल कोर्ट के अहाते में 2 लावारिस प्लास्टिक बैग्स की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कोर्ट के वकील ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने बम स्क्वाड के साथ कोर्ट पहुंचकर बैग का मुआयना किया, ताहम बैग से पुराने कपड़े दस्तयाब हुए। बेगम बाजार में मोटर पार्ट्स के सामान की दुकानात की गली में एक मकान की ऊपरी मंजिल पर वाक़े गोदाम में आग लग गई। आग की वजूहात का इल्म ना हो सका। तंग गली के सबब फायर ब्रिगेड को भी रास्ता ना मिल सका, ताहम कुछ देर बाद आग बुझा दी गई। नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद को दी शिकस्त। तहरीक की हिमायत में 122 और मुखालिफत में 160 वोट। औकाफी अराज़ियात का तहफ़्फ़ुज़, बेखुसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजा और महंगाई पर कंट्रोल करने का मजलिस ने किया मुतालबा। तहरीक अदम एतमाद की मुखालिफत। सोहराबुद्दीन और मुजाहिद सलीम के एनकाउंटर में मुलविस गुजरात और आंध्र प्रदेश के पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का अकबर ओवैसी ने किया मुतालबा। किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू में तल्ख बहस व तकरार, दोनों के एक दूसरे के खिलाफ शख्सी रिमार्क्स। मेयर बी कार्तिका रेड्डी ने दिया इस्तीफा, मजलिस का मेयर बनने की राह हुई हमवार। आंध्र प्रदेश के तर्ज पर महाराष्ट्र में मुस्लिम तहफुजात की फराहमी का मुतालबा। अर्दापुर में जलसे से सदर मजलिस का खिताब। और अर्दापुर राजेंद्र नगर में एक शख्स का नामालूम अफराद ने मोहलिक हथियारों से दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।